Hello students, welcome back to our channel again. Today we are here again with the second part of the chapter Challenges of Nation Building, and today we will study more about the chapter. In last class we have discussed few points of the chapter that were related to the major challenges in front of the nation. We have discussed that after being independent, one side there was happiness that yes, we have got freedom after the huge struggle, and but one side, that was the dark side of the independence, that there was the partition of the country, and the base of partition was the religion only. Now after being independent, there were some challenges in front of the nation that were, you can say, first major challenge was to create democracy, to establish democracy. And one more most important challenge was that how we are going to create a secular image of that country which was divided on the basis of religion. Along with that, there was a large scale displacement also. So how we are going to handle all those people who were displaced from Pakistan? How we are going to provide them occupation? How we are going to secure their identity? All these things were the major challenges in front of the nation. So, in the wordings of the poets and writers, they have tried to describe the partition of the country. For example, this is written by Faiz Ahmad Faiz, The Dawn of Freedom, in which he has tried to explain that although, yes, this is true that we have got the freedom, मतलब, but फ्रीडम तो मिली है बट हियर इट इज रिटन मेयर्ड ब्राइटनेस. इट मीन्स जो ब्राइटनेस है ना उसकी वो कहीं ना कहीं मेयर्ड, दैट इज नॉट टू मच लाइटेड. और उसका रीजन क्या है कि क्या जो एक्चुअल में हम लोगों ने जो सोचा था कि हमें फ्रीडम के बाद ऐसे ऐसा दिन मिलेगा, ऐसी भोर, डॉन मतलब होता है भोर यानी सुबह का जो टाइम होता है, राइट? तो क्या हमने ऐसी सुबह सोची थी कि फ्रीडम के बाद हमें ऐसी सुबह मिलेगी? बट शायद ऐसी तो हम लोगों ने नहीं सोची होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो गया था, पार्टीशन हो गया था, राइट? सो दीज poems, these lines are trying to show the reality of the society at that time. The writers, the poets have tried to show their sentiments through their words, not only their sentiment but the feelings of whole nation at that time. One more statement is from Muhammad Ali Jinnah. So when there was the partition of the country, second country was the Pakistan. अब यहाँ पे क्या हुआ? As we have tried to give assurance to the people of the country who were migrated from the Pakistan, तो हमने भी उनको assurance दिलवाया कि आप लोगों की आइडेंटिटी को हम सिक्योर रखेंगे, राइट? द सेम थिंग वाज डन by the presidential address of the Constituent Assembly, which was done by Muhammad Ali Jinnah, राइट? इन्होंने क्या बोला? देखो, इन्होंने बोला कि we should begin to work in that spirit, and in course of time all this angularity of the majority and minority communities. यहां पर अब देखो वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि there is no division on the basis of sects. In Hinduism, in Muslim religion also the situation is same. It means Hindus and Muslim both are divided. अब वो डिवाइडेड कैसे हैं? देखो, हिंदूज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कैसे डिवाइड होते हैं? वैष्णवाज, क्षत्रिय, बंगालीज, मद्रासी, राइट? और जो मुस्लिम लोग हैं वो कैसे डिवाइडेड थे? पठान, पंजाबी, सिया, सुन्नी एंड सो ऑन. बट यहाँ पे जो अश्योरेंस है वो क्या दिलवा रहे हैं कि आपका रिलीजन चाहे कोई भी है, आपकी कास्ट चाहे कोई भी है, बट स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन इट. That's not the business of the state, that what do you do in your personal life. You are completely free to go in your temples, to go in your mosque, and at any place which you feel that it is related to your worship area. तो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने कहीं ना कहीं अश्योरेंस दिलवाई थी उन सभी लोगों को जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को फॉलो कर रहे थे. On the next page also there are some other cuttings of the newspaper. और यहाँ पे अगेन there is a taunt with the help of some lines, and that is the reality of the society.
ऑफ द कंटेम्परेरी इंडिया, नॉट ओनली इंडिया बट पाकिस्तान ऑल्सो, कि यहाँ पे क्या हो गया, पाकिस्तान तो बन गया, पार्टीशन हो गया इंडिया का, बट वाज द सिचुएशन इन रियलिटी एट दैट टाइम, कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो कैसी थी कि आप लोगों ने क्या लॉस कर दिया हमारी कंट्री से। एक तो हमारी कंट्री से जो कहीं ना कहीं होप थी, जो एक यूनिटी थी, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है, राइट। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा टारगेटेड है, देवर दी डॉटर्स। बेसिकली दिस पोएम इज डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन ऑफ द फीमेल एट दैट टाइम, कि उनके साथ कितनी क्रुएलिटी हुई है। और यहाँ पे वो क्या शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी रिवर्स थी जिनमें वाटर फ्लो कर रहा था, अब उनमें कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो कर रहा है, राइट। जो हमारा स्काई है वो बिल्कुल रेड हो गया बिकॉज ऑफ द क्राइज। हमारी कंट्री में जो वाटर फ्लो कर रहा था वो वाटर भी कैसा होगा, टॉक्सिक हो गया है, राइट। हमारी जो फ्लूट, जो बांसुरी, जो कभी बहुत सुरीला स्वर देती थी, अब उसने क्या करना शुरू कर दिया, वो एक डेडली स्नेक में कन्वर्ट हो चुकी है। इट मीन्स द सिचुएशन हैज बिकम टेरिबल नाउ। जो सिचुएशन कभी हमारी कंट्री के लिए ब्लेसिंग्स थी, अब वो कहीं ना कहीं कर्ज बनती जा रही है, क्योंकि हमारी कंट्री का पार्टीशन हो गया है। एंड इट इज शोइंग द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी एट दैट टाइम, कि हमारी कंट्री में एक्चुअल में सिचुएशन क्या थी, राइट। So here again on the next line there are the wordings of the first prime minister of our country, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी देखो आप लोगों ने वर्डिंग पढ़ी मोहम्मद अली जिन्ना की, उन्होंने अश्योर करने की कोशिश की, दोनों को अश्योरेंस दिलवाया, हिंदूज को और मुस्लिम्स को। तो सेम थिंग वाज डन बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। अब इन्होंने देखो क्या बोला, we have a Muslim minority who are so large in number that they cannot even if they want go anywhere else। मतलब ये सिचुएशन क्या शो कर रही है कि ऑल दो इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो माइनॉरिटी में हैं, बट आफ्टर बीइंग अ माइनॉरिटी ग्रुप उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि अगर वो चाहे भी तो भी वो कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। दिस इज द बेसिक फैक्ट अबाउट विच देयर कैन बी नो आर्ग्यूमेंट। और ये ऐसा स्टेटमेंट है जिस पर आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि एवरीबडी नोज कि इंडिया में बहुत ज्यादा मुस्लिम रह रहे थे। Whatever the provocation from Pakistan and whatever the indignities and horror inflicted on non-Muslim there, we have got to deal with this minority in a civilized manner। मतलब यहाँ वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में चाहे जो भी हो रहा है, मतलब अगर पाकिस्तान में हिंदू लोगों के साथ कुछ इल ट्रीट भी हो रहा है तो दैट थिंग विल नॉट बी एप्लीकेबल इन इंडिया। हम क्या करेंगे, हम उनको सिविलाइज्ड मैनर में रखेंगे। वी मस्ट गिव देम सिक्योरिटी एंड द राइट्स ऑफ सिटीजन इन आवर डेमोक्रेटिक स्टेट। हम उनको वो सारे राइट्स देंगे जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट में एक सिटीजन के पास होने चाहिए। If we fail to do so, we shall have a festering sore which will eventually poison the whole body, politic and probably destroy it। एंड अकॉर्डिंग टू पंडित जवाहरलाल नेहरू कि अगर हम ऐसा करने में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो शायद ये ऐसी सिचुएशन होगी जो हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत सारा पॉइजन मिक्स कर देगी, और वही पॉइजन फाइनली क्या करेगा, आपकी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। सो इट मीन्स इन द माइंड्स ऑफ अ नेशन, Those who tried to create a new India, उन लोगों के माइंड में था कहीं ना कहीं कि अगर आपने रिलीजियस जो आपके डिफरेंसेस हैं, अगर उनको अच्छे तरीके से डील नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी के लिए और नेशन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। एंड दैट्स व्हाई फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स देयर वर द प्रैक्टिसेस टू शो दैट हाउ वी आर गोइंग टू डील विद माइनॉरिटी। दोनों कंट्रीज ने कहीं ना कहीं ये शो करने की कोशिश की that yes we are secular state, and no doubt although in Pakistan situation is critical but in India we are following these ideologies till now, and those people who are in minority they can live with peace and they are enjoying all the rights which a citizen should have, and that is the beauty of our country, right? Unity among diversity। अब देखो now we are coming on the major part, that is पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। अब देखो 3 वर्ड्स आर मेंशन कि पार्टीशन कैसे हुआ, पार्टीशन के बाद डिस्प्लेसमेंट। पार्टीशन ने क्या क्या दिया आपको, डिस्प्लेसमेंट दी, मतलब बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से इंडिया आए।
एंड रिहेबिलेशन मतलब क्या होता है? रीसेटलमेंट, कि जो लोग आए उनको आप सेटल कैसे करने वाले हो। These three words we are going to study, right? और बेसिकली consequences of partition we are going to study. अब देखो, on 14 or 15 August 1947, not one but two nation state came into existence, that were India and Pakistan. और ये रिजल्ट किसका था? That was the result of partition, the division of British India into India and Pakistan. इसके बाद फिर the drawing of the border demarcating the territory of each country marked the culmination of the political developments that you have read about in the history textbook. According to two nation theory advanced by the Muslim League, India consisted of not one but two people, Hindus and Muslims. That is why it demanded Pakistan, a separate country for Muslim. यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को क्या समझाया गया है? इट इज एक्सप्लेन टू यू कि पाकिस्तान की डिमांड उठने का एक्चुअल में रीजन था क्या, राइट? आप लोगों ने स्मॉलर क्लासेस में मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा होगा, विच वॉज फॉर्म्ड इन 1906. अब स्टार्टिंग में क्या होता है? It was considered that it was the party which was representing the sentiments, the ideas, the feelings of Muslim community in the legislative assembly of the country, in the legislative bodies of the country. बट बाद में उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया? दैट वी आर द सिंगल पार्टी ओनली विच इज रिप्रेजेंटिंग द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ द कंट्री. बट कांग्रेस ने ऐसा माना नहीं. इसीलिए क्या होना शुरू हो गया? कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में ये आना शुरू हो गया कि जो मुस्लिम्स है ना वो अलग है, क्योंकि कांग्रेस चाह रही थी कि अगर ऐसा डिवीजन हो गया तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री डिवाइड हो जाएगी. बट मुस्लिम लीग ने क्या सोचा कि हम एक इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और ब्रिटिशर्स ने क्या किया? दे टुक द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन बिकॉज दे हैव अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, यू नो इट वेरी वेल. और इसी के बिहाफ पे क्या हो गया? हमारी कंट्री का पार्टीशन हो गया, राइट? क्योंकि एक तरफ थी कांग्रेस और एक तरफ थी मुस्लिम लीग. और इसीलिए मुस्लिम लीग ने क्या बोला? दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल बी वर्किंग फॉर द डिमांड्स ऑफ मुस्लिम ओनली, देयर विल बी वन नेशन ऑन द नेम ऑफ मुस्लिम्स, दैट विल बी पाकिस्तान. और उन्होंने क्या डिमांड करनी शुरू कर दी? पाकिस्तान की डिमांड करनी शुरू कर दी. एंड ब्रिटिशर्स प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन इट, क्योंकि वो तो चाहते ही यही थे कि इंडिया को किसी ना किसी तरीके से वीक कर दो. बिकॉज इन लास्ट पार्ट ऑल्सो आई टोल्ड कि अगर इंडिया, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग क्या था कि या तो इंडिया इंडिपेंडेंट रहेगा ही नहीं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि वो इंडिपेंडेंट रहता भी है तो डेवलपमेंट कभी नहीं होगा क्योंकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है. तो इसी कहीं ना कहीं उन्होंने इसी बेसिस पे लोगों को रिलीजन को बेस बनाया, डिवाइड किया और इंडिया का पार्टीशन करवा दिया इनटू पाकिस्तान. और यहां से दो पार्ट बन गए, वन वाज इंडिया एंड सेकंड वाज पाकिस्तान. आई थिंक द रीजन बिहाइंड पार्टीशन इज क्लियर टू यू. अब देखो ये प्रोसेस कैसी थी. अब ऑफ कोर्स द प्रोसेस वाज नॉट गोइंग टू बी इजी, क्योंकि देखो अब लोग इतने सालों से किसी एक प्लेस पे रह रहे हैं फ्रॉम देयर जनरेशंस, और अब उनको ये बोला जाएगा कि कुछ लोगों को तो ये बोला जाएगा कि आपको डिस्प्लेस होकर पाकिस्तान जाना है, आपको डिस्प्लेस होकर इंडिया आना है, राइट? और ऊपर से लोगों के माइंड में क्या है? रिलीजन के नाम पे बहुत ज्यादा एग्रेशन भरा हुआ है, एंगर भरा हुआ है. तो ऐसी सिचुएशन में जो आपकी प्रोसेस होगी दैट इज गोइंग टू बी वेरी पेनफुल. एंड द सेम थिंग इज डिस्क्राइब्ड in a very, you can say, in a very beautiful manner that what were the situation in actually. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि आप लोगों ने रीजन समझ लिया, इसीलिए फिर क्या हुआ? डिसाइड हो गया that yes, India is going to be divided into two parts, India and Pakistan. और ऐसा जो डिवीजन करना था, it was not easy because it was very painful. और along with that, not only painful but it was difficult also कि आप जब पार्टीशन करोगे तो हाउ यू आर गोइंग टू डिवाइड द टेरिटरीज. वो पार्टीशन बहुत ज्यादा पेनफुल भी था. अब जो पेनफुल था उसका रीजन क्या था? कि जो हमारा जो बेस था पार्टीशन का दैट वाज रिलीजन, राइट? और इसका मतलब
अब जो पार्टीशन होगा, जब आप स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करोगे, आप इंडिया को जब क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी टेरिटरीज को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जहां मुस्लिम ज्यादा हो, क्योंकि इंडिया का पार्टीशन रिलीजन के नाम पे हो रहा है। तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा एरिया है कंट्री का जहां पे मुस्लिम ज्यादा है, और जिन लोगों को कंबाइन करके आप क्या करा सकते हो, आप एक पाकिस्तान फ्रेम कर सकते हो। गॉट इट? यानी अब प्रॉब्लम क्या थी, उस टेरिटरीज को फाइंड आउट करना जहां पे मुस्लिम बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में रह रहे हैं। नाउ इट वाज अ difficult situation. Why it was difficult? Because there was no any single belt in the country where there were Muslims only. क्योंकि हिंदू मुस्लिम तो एक साथ रह रहे थे, बट देयर वर टू इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द कंट्री जहां पर मुस्लिम्स क्या थे, मेजोरिटी में थे, राइट? और वो कौन कौन, और उनके साथ भी प्रॉब्लम ये थी, एक पार्ट आ रहा था आपका वेस्ट की तरफ और एक पार्ट था उसमें ईस्ट की तरफ। आप लोगों ने सुना होगा ईस्ट पाकिस्तान, जिसको बाद में बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अगर आप मैप को देखते हो तो एक पार्ट जो प्रेजेंट में बांग्लादेश है और एक पार्ट जो पाकिस्तान है, दीज वर द टू एरियाज वेयर मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी। इसीलिए अब क्या किया गया कि अब एक ऐसी कंट्री बनाओ जिसमें सिर्फ मुस्लिम्स हो। तो अब टेरिटरी को डिसाइड करना डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि एक जो पार्ट जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में थे, दैट वाज इन द वेस्ट, एंड वन पार्ट दैट वाज इन द ईस्ट। आई थिंक सिचुएशन इज क्लियर टू यू, राइट? और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि चलो टेरिटरी भी देख ले हम लोग। नाउ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वाज दैट ऑल ऑफ द मुस्लिम पीपल दे वर नॉट विलिंग टू मूव इन पाकिस्तान। वो जाना चाह ही नहीं रहे थे पाकिस्तान में, वो चाह ही नहीं रहे थे कि इंडिया का डिवीजन हो जाए। और उनमें सबसे देखो एक इंपॉर्टेंट नेम है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, क्योंकि जो उन्होंने वर्क किया था ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वर्क इज नोन एज फ्रंटियर गांधी, बिकॉज ऑफ हिज मेथड, बिकॉज ऑफ हिज आइडियोलॉजीज विच ही फॉलोड। उन्होंने क्या किया, ही अपोजिट यूनेशन थियोरी, क्योंकि उनको पता था कि अगर डिवीजन हो रहा है और वो रिलीजन के नाम पे हो रहा है तो सबसे गलत बात है, राइट? बट उनके जो वॉइस थी, उनका जो आइडिया था, उसको इग्नोर कर दिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ पाकिस्तान। और इसके बाद फिर क्या हुआ, और जो नॉर्थ वेस्ट वाज मेड टू मर्ज विद पाकिस्तान, और फिर क्या डिसाइड किया गया कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को मिला के आप पाकिस्तान बना दोगे, राइट? यानी कि आपने क्या बना दिया, जो प्रेजेंट पाकिस्तान वाला पार्ट है और जो ईस्टर्न पाकिस्तान जो था, जो प्रेजेंट में बांग्लादेश है, आप उसको मिला के पाकिस्तान बना दोगे, राइट? अब इसके बाद थर्ड प्रॉब्लम क्या थी, third problem was that two of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had very large areas where the non-Muslim were in majority. अब कुछ ऐसे थे जैसे पंजाब था, बंगाल था, जहां पे मुस्लिम बहुत ज्यादा थे, had very large areas where the non-Muslims जहां पे बहुत ज्यादा थे। और स्टार्टिंग में क्या डिसाइड हुआ, दैट दीज टू प्रोविंसेस वुड बी बाइफर्केटेड अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजोरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल्स। पहले बार क्या डिसाइड किया गया कि इनको कैसे डिवाइड करोगे, आप कैसे बाइफर्केट करने वाले हो, रिलीजन के नाम पे, कि जो आपकी जिस मान लो डिस्ट्रिक्ट में लोकल लेवल में मुस्लिम ज्यादा है तो उसको आप पाकिस्तान में इंक्लूड कर दो, जिस डिस्ट्रिक्ट में या आपके लोअर पार्ट में अगर हिंदू ज्यादा है तो उस पार्ट को आप इंडिया में इंक्लूड कर दो। And now it was a terrible situation. Why it was terrible? Because now the people were not aware. आपको ये पता ही नहीं कि आपका पार्ट, आपकी जो टेरिटरी है वो इंडिया में रहने वाली है, पाकिस्तान में रहने वाली है ना? क्योंकि पार्टीशन होना था हमारा 14 अगस्त की नाइट को पार्टीशन होना था, है ना? तो इट मीन्स a large number of people did not know on the day of independence whether they were in India or Pakistan. मतलब बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि पार्टीशन हो गया, इंडिया इंडिपेंडेंट भी हो गया, बट उनको यही नहीं पता कि वो पार्टीशन के बाद इंडिया में रहेंगे या पाकिस्तान जाएंगे। थिंक अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ द सिचुएशन। द पार्टीशन ऑफ दीज टू प्रोविंसेस कॉज द डीपेस्ट ट्रूमा ऑफ पार्टीशन। और यही प्रॉब्लम थी कि जो आपका पार्टीशन था कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पेनफुल था। अब this was related to the fourth and the most inevitable of the problems of the partition. This was the problem of the minority.
अब एक और प्रॉब्लम क्या थी, दैट वाज रिलेटेड टू द माइनॉरिटी ग्रुप, राइट। अब देखो, ओह नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट वाज ईस्ट बंगाल हैज नाउ बिकम बांग्लादेश। अब समझ आया, जो ईस्ट पाकिस्तान वाला पार्ट था जिसको क्या बोला गया था उस टाइम पे, ईस्ट पाकिस्तान। But later on, those people protested that we also want a new nation. And later on, in 1971, it was known with the name of Bangladesh. Right? So, the fourth problem was the minority of the people. Lakhs of Hindus and Sikh in the areas that were now in Pakistan, and an equally large number of Muslim on India's side of the Punjab and Bengal found themselves trapped. अब बहुत सारे लोग क्या फंस गए, वो तो बिल्कुल प्रॉब्लम में ही चले गए, क्योंकि उनको ये नहीं समझ आ रहा कि अब वो इंडिया में है, पाकिस्तान में है ना। अब और उसके साथ साथ क्या हो गया कि लोगों को ये भी ऑर्डर दे दिए गए दैट इफ यू आर लिविंग इन दिस टेरिटरी, अगर आप मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में है, देन योर एरिया इज गोइंग टू बी इंक्लूड इन द पाकिस्तान। आप मतलब पाकिस्तान का पार्ट हो। अगर हिंदू हो आप, हिंदू मेजोरिटी वाला एरिया, देन यू विल हैव टू शिफ्ट इन इंडिया। तो ये जब प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो अब लोगों को क्या करना पड़ेगा, दे विल हैव टू लिव देयर नेटिव प्लेस, दे विल हैव टू लिव द प्लेस वेयर दे वर बोर्न, है ना। और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी कि जिस लैंड के साथ आप इतने टाइम से कनेक्टेड हो, दैट बॉन्ड विल हैव टू बी ब्रोकन। अब देखो यहां पे क्या हुआ, दे वर टू डिस्कवर दैट दे वर अनडिजायरेबल अलायंस इन देयर ओन, अनडिजायरेबल एलियंस इन देयर ओन लैंड। अब अगर मान लिया आपका कोई एक छोटी सी टेरिटरी है जिसमें मुस्लिम ज्यादा हैं और हिंदूज कम हैं, तो क्या होगा, उस टेरिटरी को क्या बोला जाएगा, दैट इट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अब उसमें क्या होगा, जो हिंदूज होंगे दे विल फील देमसेल्फ इनसिक्योर, यानी वो अपने ही पार्ट पे एलियन बन गए हैं, अजनबी बन गए हैं। As soon as it became clear that the country was going to be partitioned, the minority of both sides became easy target of the attack. और जैसे ही पार्टीशन हुआ तो सबसे जल्दी, सबसे इजीली जिसको टारगेट किया गया, जिसके ऊपर अटैक्स किए गए, दैट वाज माइनॉरिटी ग्रुप, माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और ये सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से नहीं, इंडिया की साइड से भी इनको सॉफ्ट टारगेट की फॉर्म में चूज किया गया। मतलब जितनी भी वॉयलेंस हो रही थी, बहुत ज्यादा वॉयलेंस माइनॉरिटी ग्रुप के अगेंस्ट हो रही थी, राइट। नो वन हैड हैंडलिंग दिस, और कोई सिचुएशन को हैंडल भी नहीं कर पा रहा था। The people and political leader kept hoping that this violence was temporary. लोगों के दिमाग में क्या था कि चलो ये टेम्परेरी है, जैसे ही पार्टीशन होगा लोग यहां से वहां जाएंगे, माइग्रेशन होगा एंड द सिचुएशन विल बी नॉर्मल, राइट, एंड इट विल बी कंट्रोल्ड सून। बट वेरी सून द वायलेंस वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। बट प्रॉब्लम क्या हुई, कुछ टाइम के बाद ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। The minorities on both of the sides of the border were left with no option except to leave their homes, often at a new hour notice. और क्या बोला गया इसीलिए उन लोगों को, अब देखो अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हो जहां बिल्कुल माइनॉरिटी में हो, आपके मन में एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग है, और उसके बाद क्या होगा, वोलेंटिक एस्पेक्ट थे। अब जिस एरिया में मुस्लिम बिल्कुल माइनॉरिटी में बचे तो हिंदूज ने उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। जहां पर अगर कहीं पर हिंदूज आपके कम, यू कैन से कम नंबर में थे, माइनॉरिटीज थे, तो वहां पे मुस्लिम उनको इजीली सॉफ्ट टारगेट बनाना शुरू कर दिया। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई, फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स देयर वर वायलेंस ओनली, देयर वाज वायलेंस एंड वायलेंस। व्हाट वाज इन द माइंड्स ऑफ द पीपल हु वर रनिंग द गवर्नमेंट, दैट इट इज the temporary situation and within the interval of some time it is going to be changed, people will be living with peace only. But that idea was wrong. Why it was wrong? Because the violence has increased on that much level that it was not going to be controlled. और दोनों तरफ से इतनी ज्यादा वायलेंस हो रही थी कि इजीली एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा था। So this was the pain of the displacement and partition in the country. ये वो प्रॉब्लम थी, दिस वॉज द सिचुएशन कि कैसे पार्टीशन हुआ। आई थिंक दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। अब देखो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में, कि सबसे पहले तो प्रॉब्लम हमारे सामने क्या थी कि आपको इंडिया को पार्ट करना था, इंडिया को डिवाइड करना था। और डिवाइड कैसे करना था, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, दैट दोज पीपल हु आर मुस्लिम they will be going to frame a new country that is known with the name of Pakistan.
राइट, और जो बाकी पीपल होंगे दे विल हैव टू स्टे विद द इंडिया। आइडिया सिंपल था, बट प्रॉब्लम वाज दैट देयर वाज नो एनी बेल्ट इन द कंट्री इन विच देयर वर मुस्लिम पीपल ओनली। तो अब ऐसी टेरिटरी को फाइंड आउट करना जहां पर कंट्री में सिर्फ मुस्लिम रह रहे हैं, वो भी अपने आप में बड़ी डील थी, राइट। और जब फाइंड आउट किया गया देन सिचुएशन बिकेम मोर टेरिबल। क्यों टेरिबल हो गई? क्योंकि जो मुस्लिम्स थे वो टू टेरिटरीज में ज्यादा एक्सपेंडेड थे, मतलब टू टेरिटरीज में रह रहे थे। वो टेरिटरी कौन कौन सी थी? एक वेस्ट की तरफ थी और एक ईस्ट की तरफ थी। तो अगर आप इतनी दूर दूर वाली टेरिटरी को मिला के एक कंट्री बनाना चाह रहे हो, द गवर्नमेंट और द गवर्नेंस, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर द गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर, राइट। इसीलिए प्रॉब्लम क्या हुई कि कुछ लोगों ने बोला कि देयर शुड बी नो एनी काइंड ऑफ पार्टीशन जस्ट लाइक दैट, एंड खान अब्दुल गफ्फार खान इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्सन। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब जब बाइफरकेट होने वाला है तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां हिंदूज मेजोरिटी में, कुछ ऐसे एरिया हैं जहां मुस्लिम मेजोरिटी में है। तो अब उनको डिवाइड कैसे करना था कि अगर मान लिया लोकल लेवल पे भी है, आपके डिस्ट्रिक्ट को चेक किया जाएगा, लोकल लेवल को चेक किया जाएगा कि अगर आपका एरिया ऑल दो आप हिंदू मेजोरिटी एरिया में आ रहे हो बट आपके यहां मुस्लिम मेजोरिटी है, तो आपका एरिया कहां जाएगा? पाकिस्तान में जाएगा। इस तरीके से डिवीजन करना शुरू कर दिया गया। एक तो इंडिपेंडेंस न्यूली गेन की है, ऊपर से लोगों के माइंड में इनसिक्योरिटी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है 14 अगस्त की नाइट तक कि उनको इंडिया में रहना है, पाकिस्तान में जाना है, राइट। सो दिस वाज आल्सो अ टेरिबल सिचुएशन। और जो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी दैट वाज ऑफ द माइनॉरिटी सेक्शन। वो माइनॉरिटी सेक्शन की प्रॉब्लम थी कि आप माइनॉरिटीज को कैसे डील करने वाले हो। आप लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना की और पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्टेटमेंट रीड तो कर ली, बट जो लोगों के माइंड में था, पॉलिटिशियन के माइंड में था, वो यही था, उनको लगा कि दे विल बी एबल टू टैकल इट बिकॉज द सिचुएशन इज गोइंग टू बी इन देयर कंट्रोल ओनली। But with the interval of time, they realized that violence was becoming more violent and they were not able to tackle it. And just because of that, minority people became the soft targets. क्योंकि लोगों को क्या बोला गया कि आपको मान लिया अभी नोटिस दे दिया कि रात तक आपको आपका घर खाली करके पाकिस्तान जाना है, ऐसे ऐसे शॉर्ट नोटिस पे लोगों के घरों को खाली करवा लिया गया, राइट। So I think the picture after independence is in front of your eyes and you are able to imagine it. You are able to understand the pain of the people, pain of the citizens of the country. I think till now it is clear to you. We have understood the process of partition till now. In next video we will do the consequences of the partition कि चलो partition तो जैसे तैसे करके हो गया, अब उसके results क्या निकले, क्या हम लोगों को कुछ डिजायरेबल, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले या सब कुछ सिर्फ नेगेटिव था। सो नेक्स्ट थिंग, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।